لاہور میں ایک بد نصیب بیٹے نے باپ کو قتل کر کے ڈکیتی میں مزاحمت کے دوران قتل کا رنگ دے دیا۔ غازی آباد کے علاقے میں 25 فروری کو نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر 17 سالہ شخص کو قتل کر دیا۔ مقتول کے بیٹے بلال نے پولیس کو بیان دیا کہ اس کے والد کو ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کیا گیا ہے۔ 25 فروری کو مدینہ ٹاؤن علاقہ تانہ غازی آباد میں شاہد محمود نام کا ایک 65 سال کا آدمی تھا۔ اس کے قتل ہونے کی اطلاع پولیس کو موصول ہوئی اور انیشل انفارمیشن پولیس کو یہ تھی کہ کوئی ڈکیتی کے دوران ہی اس کا قتل ہوا ہے۔ مدعی کا بیٹا بلال منیر وہ اس وقت موجود تھا اور اس نے پولیس کو یہ کہانی سنائی کہ رات کو کوئی 4 بندے آئے دیوار پر لانگ کے اور انہوں نے ان کے چہرے پہ کوئی رومال نشہ آور ٹائپ کا وہ رکھ لیا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئے، اور جب وہ جاگ اٹھے تو اس نے صبح دیکھا کہ اس کا والد جو تھا وہ مرڈر ہو چکا تھا اور وہ گھر سے لیپ ٹاپ، کچھ نقدی اور باقی قیمتی چیزیں غائب تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ دوران تفتیش مقتول کا اکلوتا بیٹا بلال ہی مشکوک قرار پایا، جس پر انویسٹیگیشن پولیس نے اسے حراست میں لے کر تفتیش کی تو اس نے اعتراف جرم کرتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ وہ جائیداد کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا اور اپنے دوست کی مدد سے باپ کو تشدد کے بعد قتل کر کے ڈکیتی کے دوران قتل کا ڈرامہ رچا دیا تھا۔ پولیس نے اس کے دوست حفیظ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم سافٹ ویئر انجینئر اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ ملزم کی والدہ 7 سال قبل فوت ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کے حرکات و سکنات تھوڑے سے ڈاؤٹ فل تھے، اس لیے ہم نے اس کو وی کیپٹ ہیم انڈر آبزرویشن، اور کیس رجسٹرڈ ہونے کے بعد ہم نے اس کو شامل تفتیش کیا تو اس کے بیان بدلتے رہے، مختلف اس نے کہانیاں سنائی اور بالآخر ہی کنفیس ٹو ہز کرائم کہ اس نے اپنے باپ کو خود ہی مارا ہے۔ اور اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ یہ اس کا بلال منیر جو تھا یہ اس کا سگا بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، اور بائی پروفیشن ہی از کمپیوٹر انجینئر، تو بڑا پڑھا لکھا شخص بھی ہے اور بڑا ذہین بھی ہے۔ حفیظ نام کا بندہ ہے، وہ بائی پروفیشن ڈرائیور ہے۔ اس کو بلال نے جو مقتول کا بیٹا ہے اس نے لالچ دیا کہ میں آپ کو ایک ویگن خرید کر دوں گا، آپ میرے ساتھ میرے ابو کو مار دے۔ ملزم نے پولیس حراست میں بتایا کہ اس کے باپ کی کافی جائیداد تھی، جبکہ اس کا باپ اس کی ماں سے برا سلوک کرتا تھا اور وہ بچپن سے ہی ذہنی طور پر باپ کے خلاف تھا۔ میری والدہ کے ساتھ میرے والد بہت برا سلوک کرتے تھے، میں یہ نفرت بچپن سے پالتا رہا۔ جب یہ لاوا بالکل میرے اندر شدت اختیار کر گیا تو میں یہ حرکت کر گزرا۔ دوسرا، میرے والد نے دوسرا نکاح بھی کیا ہوا تھا لیکن وہ نکاح ثابت نہیں کر سکے، میں ان کے ساتھ اس بھی تنازع میں رہتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا یہ معاملہ اس طرح ہو گیا۔ اب مجھے اس بات کا احساس ہے کہ شاید کسی مفاہمتی حل کی کوشش کی گئی تھی، رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالا گیا تھا، سارا کچھ کیا گیا تھا لیکن وہ کوئی حل نہیں نظر آیا۔ قتل کی واردات میں ملزم بلال کی مدد کرنے والا اس کا دوست حفیظ ویگن ڈرائیور ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بلال نے اسے لالچ دی تھی کہ اگر وہ قتل میں مدد کرے گا تو اسے نئی ویگن خرید کر دے دے گا۔ وہ لالچ میں آ گیا تھا اور دوست کے ساتھ مل کر اس کے باپ کو قتل کر ڈالا۔ میرا دوست تھا بلال، کافی دیر یہ تقریباً پچھلے 2-4 ماہ سے پریشان تھا بہت زیادہ گھریلو مسئلوں مسائل کی وجہ سے۔ اس نے میرے سے پہلے بھی 1-2 دفعہ بات چیت کی لیکن میں نے اسے منع کر دیا، لیکن ایک دن اس نے بہت اصرار کیا، پھر میں بھی اس کے ساتھ، ہاں جی، اس نے کہا کہ میں جب یہ کام ہو جائے گا تو پھر تمہیں گاڑی لے کے دوں گا، ہاں یس، تم گاڑی چلاتے ہو، تمہاری اپنی گاڑی ہو جائے گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ملزموں کے خلاف تفتیش مکمل کر کے چالان جلد ہی عدالت میں بھیج دیا جائے گا تاکہ ملزم کیفے کردار تک پہنچ جائیں۔ مقتول کے محلے داروں کا کہنا ہے کہ ملزم کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی جائیداد کے لالچ میں باپ کے خون سے ہاتھ نہ رنگے۔ کیمرامین امجد شیخ کے ساتھ عامر شہزاد، سما، لاہور۔ کراچی میں 2 ہفتوں کے دوران 4 معصوم بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔
मुल्क भर में बच्चों के साथ ज्यादती और उनके कत्ल के वाकयात में शर्मनाक हद तक इजाफा हुआ है। कराची में भी बच्चों के अगवा और तशद्दुद के इतने वाकयात पेश आ चुके हैं कि जहाँ के वालिदैन को हर वक्त अपने बच्चों की खैरियत की फिक्र रहती है। इस शहर की वीरान गलियों और झाड़ियों से गुज़श्ता कई दिनों से मासूम बच्चियों की लाशें मिल रही हैं। गुलशन इकबाल के रिहायशी मेहनत कश इदरीस खान की भी 5 साला बेटी इसी शहर में इंसानों के दरमियान बसने वाले दरिंदों की दरिंदगी का शिकार बनी, और फिर वही हुआ। फूल जैसी मासूम बच्ची की लाश भी एक खाली प्लॉट से मिली। यहाँ से गए सच्चल पुलिस चौकी पे, वहाँ उसकी चप्पलें पड़ी हुई थी, तो चप्पलें मैंने देखी तो चप्पलों से तो मेरे को लग रहा था, मगर फिर भी मेरे एक दिल में वो था कि यार अल्लाह ना करे हमारी बच्ची, अल्लाह ना करे किसी और की हो, सब इंसानियत है, सब मुसलमान हैं हम लोग। तो हम लोग जब अब्बासी शहीद हॉस्पिटल गए तो वहाँ हमारी मुलाकात पुलिस वालों से हुई, तो वहाँ फिर उन्होंने हमें लाश दिखाई। हमने जब लाश से कपड़े उठाए देखा तो वाकई लाश हमारी हुई थी, और बहुत तशद्दुद करके उसे दरिंदगी से इसकी लाश को हमने अपनी आंखों के अपनी प्यारी सी फूल जैसी बच्ची को देखा, तो मैं वहाँ खुद होश खो बैठा। जिस तरह इस बच्ची की हालत मैंने देखी। शहर में एक हफ्ते के दौरान दरिंदगी और बर्बरियत का शिकार होने वाली फायजा चौथी बच्ची थी। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान गुलबर्ग, औरंगी टाउन और गुलिस्तान जौहर में भी 3 मासूम बच्चियों को दरिंदानुमा इंसानों ने अपनी हवस का निशाना बनाने के बाद बर्बरियत से उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, और इन बच्चियों का हाल भी फायजा जैसा ही हुआ। सबकी लाशें वीरान झाड़ियों या प्लॉट से मिली। फायजा गुज़िश्ता माह की 26 तारीख की रात 8 से 9 बजे के दरमियान अपने घर के बाहर से खेलते हुए उस वक्त लापता हो गई थी जब इलाके की लाइट नहीं थी, और अगले रोज इसकी तशद्दुद ज़दा लाश कराची के मज़ाफ़ाती और वीरान इलाके सिकंदर गोट की झाड़ियों से मिली। फायजा को जो है अगवा किया गया मुबीना टाउन थाने की हद से, और 27 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे हमें उसकी डेड बॉडी मिली है सिकंदर गोट जो है एक इलाका है उसके करीब से। इसमें हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से मुझे बड़ी उम्मीद है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 5 साला फायजा KG1 की तालिबा थी, जिसकी गुमशुदगी के बाद इसके घर वालों ने इसे तलाश करने की कोशिश की और पुलिस से मदद भी मांगी, लेकिन मकतूला के घर वालों के बकौल पुलिस रात के आखिरी पहर इनकी मदद करने के बजाय सोती रही। SP गडाफ ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ है कि फायजा को अगवा करने के बाद ज्यादती का निशाना भी बनाया गया और फिर इसे गला घोंटकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस मुल्ज़िमान के ताक़ुब में है और SP का दावा है कि दरिंदा सिफ्त कातिलों को अनकरीब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेडी डॉक्टर है, उन्होंने इसको क्लियर किया था कि इसके साथ जो है रेप भी हुआ है और फिर उसका मर्डर भी हुआ है, और उसको गला दबा के जो है उसको मतलब ये है कि गला दबा के उसकी जो है उसको मारा गया है। और इतनी मासूम बच्ची, इतनी कम उम्र, उसके साथ इतनी ज़्यादती। इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम इसकी जदोजहद कर रही है कि हमें जो जेन्युइन जो इनके क्रिमिनल्स हैं, जो कातिल हैं, जिन्होंने इसके साथ रेप किया है, उनको हम पकड़ें। 5 साला फायजा के लवाहिकीन का कहना था कि अगर पुलिस उनकी बर वक्त मदद कर देती और उनका साथ देती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती और वो बर्बरियत का शिकार ना बनती। मुबीना टाउन वाले कह रहे थे कि ये हमारी हुदूद नहीं है, सच्चल वाले कह रहे कि ये हमारी हुदूद नहीं है। इनका आपस में तनाज़ा आ रहा था। हम टेंशन में हो गए, या अल्लाह हमने किस अज़ाब में अपने में डाला है। कोई वहाँ पे करे, कोई यहाँ पे करे, हम कहाँ जाएँ, हम किसके पास जाएँ? आपस में अगर बरवत कार्रवाई करते हैं मुबीना टाउन की पुलिस, शायद हमारी बच्ची हमें मिल जाती। मकतूला के लवाहिकीन ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि कातिलों को गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए। हम उम्मीद से हैं कि इंशाल्लाह उन्हें कुब्र किरदार तक पहुंचाया जाए। जो मुल्ज़िमानों ने जो हरकत की है, जो भी हो, तो देखो हम भी कोशिश में लगे हुए हैं, पुलिस भी लगी हुई है। देखो अल्लाह करे वो मुल्ज़िम मिल जाए और उनको सज़ा दिए जाए। हमें कुछ क्लूज़ मिले हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मेरा ख्याल है कि बड़ी ही वहशतनाक किस्म की जो ये क्राइम हुआ है उसको हम ज़रूर डिटेक्ट करेंगे और असल जो मुल्ज़िमान हैं उनको ज़रूर अरेस्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह कराची के वालिदैन भी अपने बच्चों के अगवा, उनसे ज़्यादती और कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से इंतहाई परेशान हैं। उनकी परेशानी उस वक्त ही ख़त्म हो सकती है जब कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात को यकीनी बनाएं कि अब कोई बच्चा भी अगवा नहीं होगा। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मुल्क भर में बच्चों के अगवा और कत्ल की वारदातों में इजाफा हो रहा है।
मगर लाहौर से तावान के लिए अगवा किए गए 3 साल के बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। रवामा फैक्ट्री एरिया के इलाके मस्त इकबाल रोड के रहायशी मोहम्मद यार के 3 साला बच्चे अबू जर को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया और वालदैन से 40 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया। वालदैन ने पुलिस को इतला कर दी और साथ ही अगवाकारों को 1 लाख रुपए भी दिए। पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो पता चला कि अगवाकार बच्चे का फुफीजाद भाई है। मेरा बड़ेवा है ते असी शादी ते आए सा ते उतो शादी तो असी जेड़ा नहीं वो ये असी अजे ना तो घर ही ऐसा शादी मैंने गए ही नहीं है तो तू घरों बच्चे दोवें बाहर चले गए। ये छोटे ने इन्हें घर भेज दिता, इनू चुक ते लै गए। असी पिछे लभदे लुभदे फिरे कोई ना सानू पता ही ना चलिया। बड़ा ऐसा कुछ किया, इश्तिहार भी लाए, बड़ा बाड़ा बुड़ा कोई ना लभ्या। पुलिस ने मोबाइल फोन की कॉल्स के जरिए मुल्जमान का पीछा किया और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान में मोहम्मद नईम, परवेज और मकसूदा बीबी थी, जबकि इस वाक़े का मेन मुल्जिम नईम था। 2 मार्च को चूँकि अमर सिद्धू के मस्त इकबाल रोड एक एरिया इलाका थाना फैक्ट्री एरिया, वहाँ से एक छोटा बच्चा अबू ज़र जिसकी उम्र 3 साल है और उसका वालिद मोहम्मद यार, उसने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बेटा जो है वो गली में खेलने चला गया और खेलने के बाद वो वापस नहीं आया, वो गायब है। पुलिस ने FIR दर्ज की और उसके बाद 3 दिनों बाद इनके जो यार मोहम्मद है उनको कॉल मौसूल हुई कि आपका बेटा हमारे पास है और आप हमें 40 लाख रुपए दे तो आपका बच्चा आपको वापस कर देंगे। उस नंबर से हमने पुलिस साथ लग गई और उसको ऑब्जर्वेशन में रखा और कल रात तक इनसे बातचीत चलती रही। 40 लाख से ये 36 लाख पे आ गए और फिर इस दौरान ये डिसाइड हो गया कि हम आपको कुछ पैसे एडवांस दे देते हैं क्योंकि गरीब लोग हैं हम। तो उन्होंने कहा कि हम अरेंज इकट्ठे नहीं कर सकते, तो 1 लाख रुपये इन्होंने अरेंज करके जब इनको दे दिए तो पुलिस चूँकि साथ थी प्लेन क्लोथ्स में, इनको ट्रेस आउट किया और फिर उसके बाद पुलिस ने रेड किया, बच्चे को भी बरामद कर लिया और जो 3 मुल्जिमान थे नईम, मोहम्मद परवेज़ और मकसूदा बीबी, इनको पकड़ लिया। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें जो मेन मुल्जिम है नईम, ये जो अगवाशुदा है बच्चा, ये इसके मामू का बेटा था और चूँकि उसे घर का पता था तो उसने उसको बच्चे को उठा लिया था। और इसमें एक और बात ये थी कि इन्होंने ये भी डिसाइड किया हुआ था कि अगर 1 दिन के अंदर अंदर हमें ये रकम ना मिली तो हमने फिर इस बच्चे को मारने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। लकीली वो 1 लाख रुपए उनको पे हो गए और पुलिस ने फिर उनको गिरफ्तार कर लिया। तो यूँ ये बच्चा जो मासूम बच्चा था वो कत्ल होने से बच गया। पकड़े जाने वाले मुल्जिम अपने किए पर शर्मिंदा हैं और उनका कहना है कि रकम की लालच में उन्होंने ऐसा किया, लेकिन वो इस मामले का मलबा एक दूसरे पर डालते रहे। मैं इसके घर के बाहर पहुँचा हूँ, ठीक है, तो ये बच्चों को चीज़ लेकर ना तो बाहर मेन की तरफ आ रहा था। तो मैंने कहा चलो नहीं मैं आ गया हूँ, चलो घर चलो, मैं आपको जो है ना दही आपका उधर छोड़ के आता हूँ। कहता है तुम ये काम करो, ये बच्चा है, ये मैंने रिक्शे में बिठा दिया, इसे ले जाओ। इसने सर इसे चीज़ें बच्चे को लेके दी थी तो वो मेरे रिक्शे के अंदर बिठा दिया। तो सर मुझे कहता है ये तुम लेके जाओ तो फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। सर मैं अपने घर चला गया हूँ, मैंने इसे घर जाके फ़ोन किया, यार वो बच्चा रो रहा है तो मैं उसे लेके आ रहा हूँ वापस। ये मुझे सर धमकियाँ दे रहा था कि मैं तुम्हें फायर मार दूँगा, तुम जिधर रहते हो मैं उधर जानू, तुम्हें मुका दूँगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो सर मुझे ये धमकियाँ उल्टियाँ सीधी देता था, तो कहता था जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे तूने करना है। तो सर मुझे रोज़ जाके ना ये बताता था कि ये ऐसे करो ऐसे करो, मैं जब कहूँगा ना आपको पैसे पकड़ने उस वक्त पैसे पकड़ने हैं। बच्चे के वालिदैन कई दिन सदमे से 2-4 रहे, तहम उसकी बाहिफाजत वापसी पर बहुत खुश और पुलिस हुकाम के मशकूर हैं। कैमरामैन यासिर खान के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर।